تم اپنی آخری سانس کے بعد کہاں جاؤ گے؟ تمہاری روح ابدیت میں چلی جائے گی۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ تیرے مخلص خدا نے اور وہ جو تجھے پیٹ سے پیدا کرتا ہے یوں فرمایا، میں وہ ہوں جو زمین کو اپنے آپ بچھاتا ہوں، جبکہ تو میری نگاہ میں قیمتی تھا۔ میں نے تجھ سے محبت کی، میں ہی وہ ہوں جو تیری خطاؤں کو مٹا دیتا ہوں اور تیرے گناہوں کو یاد نہیں کرتا۔ میری طرف دیکھو اور اپنے آپ کو بچاؤ اے زمین کے کناروں، کیونکہ میں خدا ہوں اور کوئی اور نہیں۔ یہ نہیں اہمیت رکھتا کہ تم کون ہو یا تم نے کیا کیا، خدا تم سے محبت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم یہ نہ مانتے ہو کہ وہ موجود ہے، لیکن اس سے حقیقت بدل نہیں جاتی کہ خدا حقیقت ہے۔ اس کی محبت تم سے حقیقی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم ابدیت کے لیے جنت میں اس کے ساتھ رہو۔ کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خداوند ہمیں بچانے والا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو، بلکہ یہ کہ سب توبہ کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب انسانوں کی نجات ہو اور وہ سچائی کے علم تک پہنچے۔ لیکن سچائی کیا ہے؟ ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جس میں بے شمار غیر یقینی صورتحال ہے، جھوٹ ہے، جھوٹے مذاہب ہیں۔ یسوع فرماتا ہے، جو کلمہ میں تم سے کہتا ہوں وہ روح اور زندگی ہے۔ اگر تم میرے کلمہ میں قائم رہو گے تو تم سچائی کو جان پاؤ گے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ یہ سچائی ہے کہ ہم سب یسوع مسیح کے بغیر کھوئے ہوئے ہیں، چاہے ہماری زندگی کتنی کامیاب کیوں نہ ہو، ہم کتنے ہی مذہبی کیوں نہ ہوں۔ اگر یسوع مسیح میرا نجات دہندہ نہیں، اگر وہ تمہارا نجات دہندہ نہیں ہے، تو ہم مر کر خدا سے الگ ہو جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے۔ اپنے دل میں سچے سے سوال کرو، اگر میں ابھی مر جاؤں تو کہاں جاؤں گا، جنت یا دوزخ؟ اگر تمہیں 100% یقین نہیں ہے کہ جنت تمہارا گھر ہوگا تو امید رکھو، کیونکہ خدا ہمیں تسلی دیتا ہے۔ پہلا یوحنا 5:13، میں نے یہ بات اس لیے لکھی تاکہ تم جان لو کہ تم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو اور تم خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لاؤ۔ جب تمہارا وقت اس دنیا کو چھوڑنے کا جائے گا تو تم بغیر کسی شک کے جان سکو گے کہ تم جنت میں جا رہے ہو۔ اس لیے خداوند نے تمہیں یہ فلم دیکھنے کا موقع دیا ہے۔ وہ تم سے اپنی محبت بانٹنا چاہتا ہے اور تمہیں ابدی نجات کا راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہ آلودہ حالت کو سمجھنا ضروری ہے۔ کتاب مقدس رومیو 3:23 میں کہتی ہے، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم رہے۔ ہم اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں اچھا سمجھ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی کامل نہیں۔ جیسے لکھا ہے کہ کوئی بھی راست باز نہیں، کوئی بھی نہیں۔ جیسے لکھا ہے کوئی بھی راست باز نہیں ہے، ایک بھی نہیں، اور کتاب مقدس نے سب کو گناہ میں ملوث قرار دیا ہے۔ یہ معنی نہیں رکھتا کہ ہم جتنی بھی کوشش کریں، ہم سب خدا کی پاکیزگی اور جلال سے محروم ہیں۔ میں گناہ گار ہوں، تم بھی گناہ گار ہو۔ بائبل مقدس پہلا یوحنا 3:4 میں کہتی ہے، جو کہ گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ آؤ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ پیش آئیں۔ ہم سب نے برے کام کیا، ہم سب نے خدا کے قانون کو توڑا ہے، چاہے وہ جھوٹ بولنا، بے ایمانی ہو، چوری کرنا، دھوکہ دینا، خدا کا نام بے فائدہ لینا، غلط سوچ یا اپنے والدین کی نافرمانی کرنا۔ لیکن ہم نے اپنے گناہوں کے سبب سے خدا کے قانون کو توڑا اور وہ ایک سنگین جرم ہے۔ جیسے ایک مجرم کو اپنے جرم کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، ویسے ہی گناہ گار کو اپنے گناہوں کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں اپنی لیدگی کی حقیقت کو تسلیم کرنا ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ رومیو 5:12 ہمیں سکھاتی ہے کہ موت گناہ کے ذریعے آئی اور سب آدمیوں پر آئی، کیونکہ سب نے گناہ کیا۔ گناہ کے ساتھ مرنا یسوع مسیح کے بغیر یعنی ہمیشہ کی زندگی دوزخ میں گزارنا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن خدا کا کلام واضح ہے۔ ڈرنے والے اور بے ایمان اور گھٹیا اور قاتل اور بدکاری کرنے والے اور جادوگر اور بت پرست اور تمام جھوٹے لوگ آگ اور گندک
इंजील में अपने हिस्से को पाएंगे। शायद तुम ये सोच रहे हो, मोहब्बत करने वाला खुदा ये कैसे कर सकता है? हकीकत ये है कि वो ये नहीं चाहता मगर उसे करना पड़ता है। दोज़ख वो जगह है जहाँ अज़ियत और अज़ाब की शिद्दत है। वो जगह जो खुदा ने असल में शैतान और गिराए गए फरिश्तों के लिए बनाई थी, एक ऐसी जगह जहाँ गुनाह को उसकी नज़र से हमेशा के लिए दूर किया जाएगा। खुदा ने दोज़ख को हमारे लिए नहीं बनाया, उसने जन्नत को हमारे लिए बनाया है। यूहन्ना 14:2 में फरमाता है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करो। लेकिन जन्नत में कोई गुनाह नहीं आ सकता। खुदा पाक और कामल है। हमारे अपने गुनाह हमें उससे अलहदा करते हैं, हमारे अपने गुनाह हमें दोज़ख में भेज देते हैं। मैं यकीन करता हूं कि खुदा ने अपनी मोहब्बत से मकाशफा 21:8 ताकि हमें रुक कर ये देखने की जरूरत है कि अगर हम अपने गुनाहों में मर जाएंगे तो क्या होगा। खुदा नहीं चाहता कि कोई दोज़ख में जाए, इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे यस्सु को भेजा। यस्सु तुम्हारे लिए आया, वो आया क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है। तीसरे नंबर पर हमें अपने निजात दहिंदा की सलीब को पहचानना जरूरी है। सबसे मशहूर बाइबल की आयत यूहन्ना 3:16, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह खुदा का कामिल बेटा है, एक कंवारी से पैदा हुआ और वो दुनिया के गुनाह उठाने के लिए सलीब पर मरा था। यीशु ने 33 साल और 6 महीने गुनाह से पाक जिंदगी गुजारी, सच्चाई की तालीम दी और तबलीग की। यीशु ने बीमारों को छुआ, लंगड़ों को दोबारा चलाया, बहुत से लोग उस पर ईमान लाए और वो लाज बीमारियों से शिफायाब हुए। लेकिन फरीसियों ने उससे नफरत की और धोखा दिया। उन्होंने यीशु का मजाक उड़ाया और झूठे इल्जामात आयद किए। पैंतुस पिलातुस को उसे मौत के लायक बनाने का कहा। यीशु मसीह को बेरहमी से कोड़ों से मारा गया। ये एक ऐसा औजार था जिसमें धाती टुकड़े, पत्थर और चमड़े के धागे में बने हुए थे। उसने आम तकलीफ और दर्द को बर्दाश्त किया क्योंकि उसकी मोहब्बत हमारे लिए थी। उन्होंने कांटों का ताज बनाया और उसके सर पर रख दिया और उन्होंने कहा, इसे सलीब पर चढ़ा दो, सलीब पर चढ़ा दो। लेकिन यह सब खुदा की मोहब्बत भरी निजात का हिस्सा था। यीशु ने जुर्तमंदी से कलवरी की पहाड़ी पर यरूशलेम के बाहर अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। खुदा की मोहब्बत को हम इस तरह पहचानते हैं कि उसने अपनी जिंदगी हमारे लिए कुर्बान कर दी। उसने अपने आप को कुर्बानी के तौर पर दिया और अपने खून से हमारे गुनाहों का कफारा दिया ताकि हमें दोज़ख से बचा सके। ये मेरे और तुम्हारे गुनाह थे जिन्होंने उसे सलीब पर लटकाया। मैं यकीन करता हूं कि उसने सलीब पर लटकते वक्त तुम्हें खास तौर पर याद किया। उसने तुमसे मोहब्बत की और तुम्हारे लिए मर गया और तीसरे रोज वो मुर्दों में से जी उठा और कब्र पर फतह हासिल की और हमें निजात पेश करता है। किताब मुकद्दस रोमियो 6:23 में कहती है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। ये बुरी खबर है, लेकिन खुदा का तोहफा यीशु मसीह खुदावंद के जरिए हमेशा की जिंदगी है। ये खुशखबरी है। जो कुछ यीशु ने सलीब पर किया उसके जरिए खुदा तुम्हें एक तोहफा देता है। वो हमेशा की जिंदगी है जो उसके साथ जन्नत में गुजारते हैं। यकीनन तोहफा वो चीज होती है जो मोहब्बत से आजादाना तौर पर दी जाए। ये कमाई नहीं जाती और ना ही तुम उसे हासिल कर सकते हो। अगर तुमने ये कमाई होती तो ये तोहफा ना होता। कोई और कीमत अदा करता है और फिर तुम्हें पेश करता है। तुम्हें इंतखाब करना, इसके लिए कबूल करना या रद्द करना। वो तोहफा जो खुदा तुम्हें पेश करता है वो जन्नत में हमेशा की जिंदगी है। हमेशा की जिंदगी बपतिस्मा लेकर, पैसे देकर या चर्च जाकर कमाई नहीं जा सकती। तुम जितने भी अच्छे काम कर लो वो तुम्हारे बुरे मालों का तवाज़न नहीं कर सकते। वो तुम्हें जन्नत में नहीं ले जा सकते। ये सिर्फ यीशु मसीह के जरिए है। उसने कीमत अदा की है। खुदा का कलाम साफ साफ कहता है, क्योंकि तुम फजल से ईमान के वसीला से निजात पाए और तुम्हारे अपने कामों से नहीं। ये खुदा का तोहफा है, ये कामों से नहीं। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही राह, हक और जिंदगी हूं। कोई भी शख्स मेरे सिवा बाप के पास नहीं जा सकता। अमाल 4:12 कहती है, क्योंकि आसमान के नीचे इंसानों में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके जरिए हम निजात पा सके। यह सिर्फ यीशु है। अब हमारे पास एक सादा इंतखाब है। खुदा रोमियो 10:13 में वादा करता है, क्योंकि जो कोई खुदावंद के नाम पर पुकारेगा वो निजात पाएगा। दोस्त वो
आसमान पर खड़ा है, अपनी मोहब्बत के साथ अपने बाजू खोलकर तुम्हारे ईमान के जरिए उसे कबूल करने का इंतजार कर रहा है। किताब मुकद्दस के मुताबिक अगर तुमने यीशु मसीह को अपना ज़ाती निजात दहिंदा के तौर पर कबूल नहीं किया और उसकी निजात का तोहफा जो वो तुम्हें पेश करता है, तो तुम मर जाओगे। तो कहाँ जाओगे? जो जशीला जवाब ये है, जन्नत। लेकिन अगर तुमने यीशु मसीह को रद्द कर दिया, जो कुछ उसने तुम्हारे लिए सलीब पर किया, कबूल नहीं किया, तो हमेशा की जिंदगी कहाँ गुजारोगे? संजीदा जवाब ये है, दोज़ख। अब तुम्हारे पास इंतखाब है, एक जाती फैसला करने का मौका, क्योंकि ना तुम खुदावंद से पुकार कर उसे निजात देने के लिए कहो, इस लम्हे में मैं तुम्हें दरख्वास्त कर रहा हूँ, मेरे साथ दुआ में शरीक हो जाओ। यकीनन अल्फाज कहना तुम्हें निजात नहीं देगा, लेकिन दिल से ईमान की दुआ कर कि यीशु मसीह से पुकारना कि तुम्हें निजात दे। खुदा सुन रहा है। बिल्कुल अभी क्या तुम सर झुकाकर मेरे साथ दुआ करना चाहोगे? प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, मैं जानता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं मरकर दोज़ख में जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आसमान में तेरे साथ रहूँ। मैं ईमान रखता हूँ कि तू सलीब पर मेरे लिए मरा और फिर जिंदा हुआ। मुझ पर रहम कर, मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरे दिल में आ और मुझे निजात दे। मैं खुशी से तेरी हमेशा की जिंदगी का तोहफा कबूल करता हूँ। मैं तुझ पर ईमान रखता हूँ कि तू ही मेरा निजात दहिंदा है। खुदावन तेरा शुक्र हो तेरी मोहब्बत और निजात के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। दोस्त, क्या तुम अभी यीशु पर ईमान लाए और उसे अपना ज़ाती निजात दहिंदा बनाया? खुदा की तमजीद हो। किताब मुकद्दस साफ साफ कहती है कि तुम कभी भी अपनी निजात नहीं खोज सकते, क्योंकि जो कोई खुदा के नाम पर पुकारेगा वो निजात पाएगा। शायद हाँ, बल्कि वो निजात पाएगा। खुदा तुम्हारे साथ हमेशा की जिंदगी का वादा किया है। मसीहों के लिए मौत अब जिंदगी से अगली जिंदगी में एक मुंतकली है। यीशु मसीह ने उन सबको यकीन दिलाया जिन्होंने उस पर ईमान रखा, मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी देता हूँ और वो कभी हलाक नहीं होंगे, ना कोई भी शख्स उन्हें मेरे हाथ से छीन पाए। तुम्हारी रूहें यीशु मसीह के कुदरती हाथों में महफूज हैं। अगर तुमने आज दुआ की और उस पर ईमान रखा तो हमें तुमसे सुनकर खुशी होगी। बराए करम हमसे राब्ता करो ताकि हम तुम्हारे साथ खुश हो सकें। हमें खुशी होगी कि हम आपके लिए दुआ करें और बतौर मसीह आपके किसी भी सवाल में आपकी मदद करें। खुदा आपको बरकत दे और बराए करम इस निजात की खुशखबरी और उम्मीद का पैगाम जितना हो सके लोगों तक पहुंचाओ।